Good morning to all students. In the last video of class 11 accountancy, we discussed traditional rules of generalizing as well as the modern rule of generalizing. In the traditional rule of generalizing, we discussed there are basically two types of account, that is personal account and impersonal account. Personal accounts means all those accounts which are related to the person, human being, company, firm or any institution. Whereas an impersonal account may be classified into two categories, that is real account and nominal account. Real account includes all those accounts which are the properties of the business as well as which can be measured in the monetary terms. And in the personal account, we include all those accounts which are related to the income, profit, loss and expense. The rule of generalizing of personal account is debit the receiver and credit the giver. यानी जो पर्सन रिसीव करेगा उसे हम डेबिट करेंगे और जो पर्सन गिव करेगा उसे हम क्रेडिट करेंगे. वेयर एज इन रियल अकाउंट द रूल ऑफ जनरलाइजिंग इज डेबिट वॉट कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट गोज आउट. यानी जो एसेट्स बिजनेस में आएगी उसे हम डेबिट करेंगे और जो एसेट बिजनेस से जाएगी उसे हम क्रेडिट करेंगे. एंड इन अ नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वेयर इज एन क्रेडिट इनकम्स एंड गेंस. यानी अगर हमें एक्सपेंस होगा या लॉस होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे और अगर हमारी इनकम और गेन होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे. इन द मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग वी क्लासीफाई द अकाउंट्स इनटू द 5 कैटेगरीज: assets, capital, liabilities, income and expense. In case of assets, if there is an increase in the value of assets, so it will be debited, and if there is a decreasement or decline in the value of assets, so it will be a credit. In case of capital, you know very well, when capital will be increased, so it will be a credited, and when capital will be decreased, so it will be debited. In case of liabilities, if liabilities of the business will be increased, so it will be a credited, and if the liabilities of the company will decline, so it will be a credited. In case of income, if the income of the business will increase, so it will be a credited, and if the income of the business will decline, so it will be debited. In case of expense, if expense of the business will increase, so it will be debited, and if increase of the business is decreased, so it will be credited. So there are basically two rules of generalizing, that is traditional rule of generalizing and modern rule of generalizing, which already discussed in the previous videos. In the last video, we also solved the practical problems by which we can understand how we will implement the modern rule as well as traditional rules while we pass the journal entry. Today we will move to the another practical problem, and we can pass the journal entry with the implement of rule of generalizing, that is traditional rules of generalizing and modern rule of generalizing. So आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को लेकर कि हम किस तरह से किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में जितने भी ट्रांजिशन इवेंट्स होते हैं उसकी जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, और जो भी रूल्स आपने भी पढ़े हैं ट्रेडिशनल रूल्स एज वेल एज मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग, उसको कैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अप्लाई करते हैं. इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपके साथ दोनों रूल्स ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग को क्लासीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया है, जो आपको जनरल एंट्री पास करने में काफ़ी हेल्प करेगी. सो नाउ वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम and understand how we will pass the journal entry by the help of modern rule of generalizing as well as the traditional rule of generalizing.
So it is a question. Question says that the following transaction record in the journal. There are basically 10 transactions are given in this question. The first transaction is business commenced with a capital rupees 6 lakh. The second transaction 4 lakh 50,000 deposited in a bank account. The third transaction rupees 3 lakh 2 lakh 30,000 plant and machinery purchased by paying 30,000 cash immediately. Purchase goods worth 40,000 for cash and 45,000 on account. Number 5th transaction paid a check of 2 lakh to the supplier for plant and machinery. 70,000 cash sales of goods costing 50,000. Withdrawn by the proprietor 35,000 for personal use. Number 8 insurance paid by check of 2,500. Salary of 5,500 outstanding. And furniture of rupees 30,000 purchase in cash. So all the above 10 transaction, how we will pass the journal entry in the journal, let's discuss it. The first transaction is business commenced with a capital of rupees 6 lakh. You know very well, it is a situation when any owner of the business introduce a some capital in the business. So in this situation, you know very well, it is called capital. So what comes in the business? Comes is cash. जब भी अब कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें कैश इन्वॉल्व करते हैं. यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो कैश आ रही है, सो कैश को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. एंड व्हाट गोज? सो कैपिटल. कैपिटल इज नॉट गोज बिकॉज ऑफ, यू नो वेरी वेल, कि जब भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो कैश तो आता है लेकिन बिजनेस की कैपिटल विल बी इंक्रीज. सो यू नो वेरी वेल, इन द मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग, इन द मॉडर्न रूल ऑफ जनरलाइजिंग, यू कैन सी कि जब किसी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है तो कैपिटल को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. सो आप जब भी जर्नल एंट्री पास करिएगा तो आप मॉडर्न रूल और ट्रेडिशनल रूल दोनों को अपने माइंड में रख के जर्नल एंट्री पास करनी है. ओके, तो इस पूरी जर्नल एंट्री में आपने देखा, फर्स्ट जर्नल एंट्री में, उसमें आपने देखा कि डेबिट में रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल हुआ, या फिर कह सकते हैं इसमें एसेट्स अकाउंट का भी रूल एप्लीकेबल हुआ, क्योंकि एसेट्स जब भी इंक्रीज होती है हम एसेट्स को डेबिट करते हैं उस पर्टिकुलर नेम से. सो कैश यहाँ डेबिट हुआ और कैपिटल को हमने क्या किया? क्रेडिट किया. बिकॉज जब एसेट्स बढ़ती है तो एसेट्स डेबिट होती है और जब कैपिटल बढ़ता है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज 4,50,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट. You know very well, if you open a bank account, so who's a receiver? So receiver is a bank, because bank is a artificial person. So जब भी हम बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो बैंक वाले को जाके पैसा देते हैं. तो who's a receiver? Bank. So according to the personal account, bank will be debited. But what goes? According to the real account, we know कि जब हम बैंक अकाउंट खोलेंगे तो मेरे पास से पैसा जाएगा. तो जाएगा तो मीन्स क्रेडिट वॉज गोज आउट. सो इन दिस सिचुएशन डेबिट में कौन सा रूल एप्लीकेबल हुआ? पर्सनल अकाउंट का. और क्रेडिट में कौन सा रूल एप्लीकेबल हुआ? रियल अकाउंट का. सो इन दिस सिचुएशन द जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश. यू नो वेरी वेल, जब हम एक एक जर्नल एंट्री पास करते हैं तो उस जर्नल एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं. सो आफ्टर द पासिंग द जर्नल एंट्री in the journal column, we will write a brief description about the transaction, which is called narration. It is called narration. Narration means which gives a brief description about the transaction. In the first situation, business started with cash. In the second transaction, cash deposited in the bank. The amount will be written as follows, which already discussed in the previous video. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि जब कोई भी जर्नल एंट्री का पेज कंप्लीट हो जाता है तो यू नो वेरी वेल, वहीं पे उस जर्नल एंट्री के जो कॉलम होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, उसको टोटल करके उस टोटल को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे क्या कर देते हैं? ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं. जैसे यहाँ पे भी पेज ख़त्म हो गया है इस पेज पे, इस क्वेश्चन में, तो जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर
वो टोटल ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट हो चुका होगा एज अ ब्रॉड फॉरवर्ड। यहाँ मिस्टेकली CF लिखा है बट CF नहीं होगा, BF होगा, ये नहीं होगा, बिकॉज BF शोज द ब्रॉड फॉरवर्ड। यानी जिस पेज पे कंप्लीट करते हैं ट्रांजेक्शन को और उसको नेक्स्ट पेज पे स्किप करते हैं, तो जिस पेज पे लास्ट में हम टोटल करते हैं उसको लिखते हैं टोटल कैरी फॉरवर्ड, और नेक्स्ट पेज पे उसको लिखते हैं टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन, द थर्ड ट्रांजेक्शन इज 2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाई पेइंग 30,000 इमीडिएटली। यू नो वेरी वेल, आपने प्लांट एंड मशीनरी कितने का खरीदा? 2,30,000 रुपये का, बट कैश कितने का दिया? 30,000 रुपीज़ का। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 2,30,000 रुपये की एसेट्स आई। सो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट ऑल द एसेट्स विल बी डेबिटेड व्हेन डेबिट व्हाट कम्स इन, बट व्हाट गोज? सर गोज इज 30,000 एज अ कैश। सो 2,30,000 की प्लांट एंड मशीनरी डेबिट होगी, वेयर एज 30,000 का जो कैश है वो क्रेडिट होगा, बिकॉज क्रेडिट वॉज गोज आउट। बट सर 2,30,000 रुपये की चीज़ है, हमने पे तो 30,000 किया, बाकी 2 लाख रुपीज़ का क्या करेंगे? तो यू नो वेरी वेल द रेस्ट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, बिकॉज दिस अमाउंट विल बी पेड आफ्टर अ सम मंथ। तो आपको ये पैसा तो देना ही देना है, सो इट इंडिकेट्स योर लाइबिलिटी। सो यू नो वेरी वेल कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो इट विल बी ए क्रेडिटेड। ओके, सो यहाँ पे आप चाहें तो एसेट्स अकाउंट का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट डिक्लाइन होता है तो क्रेडिट, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो इसमें 2,30,000 रुपये की एसेट्स इंक्रीज हुई है एज अ प्लांट एंड मशीनरी, 30,000 रुपीज़ का कैश डिक्लाइन हुआ है, सो एसेट्स को क्रेडिट किया, कैश को, और जो 2 लाख रुपीज़ बचे हैं अभी हमें और देना है, उसे हम लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे, और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है सो वो क्रेडिट होती है। अब लाइबिलिटी में किसका नाम लिखेंगे? तो यू नो वेरी वेल क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मतलब क्या होता है? क्रेडिटर्स मतलब द पर्सन फ्रॉम हुम वी परचेज एनीथिंग ऑन क्रेडिट। वो बंदा जिससे हम कोई सामान उधार खरीदते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिटर, और जिसको देना होता है, जिसको हम बेचते हैं उसको हम डेटर बोलते हैं। ये दोनों टर्म आपको शायद क्लियर होगा कि हुज क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब अ पर्सन टू हुम वी परचेज एनीथिंग ऑन क्रेडिट, and whereas a debtor, a person to whom goods sold on credit. Okay, so in this situation you can see that the plant and machinery debited by 2,30,000, whereas the cash is credited by 30,000, and the creditor will be credited by 2 lakh because of liability will be increased. And the narration is परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीन बाई पेइंग 30,000 कैश एंड बैलेंस ऑन द लेटर डेट, यानी बाद में देना, नहीं भी लिखा है यू नो वेरी वेल कि 2 लाख रुपए में बाद में देना। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 4। ट्रांजेक्शन नंबर 4 इज परचेज गुड्स फॉर 40,000 फॉर कैश एंड 45,000 ऑन अकाउंट। हमने 45,000 रुपये का गुड्स खरीदा कैश दे के और 45,000 रुपये का ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट। ओके, यानी हमने टोटल में कितने का गुड्स खरीदा? सो वी परचेज अ गुड्स ऑफ ₹85,000, जिसमें से कैश कितने का गया? 40,000 रुपीज़ का, बट अभी भी कितना उधार है, कितना क्रेडिट है? 45,000। और क्रेडिट खरीदने तो किसका नाम लिखते हैं? क्रेडिटर्स का, सप्लायर्स का। हम जिससे उधार गुड्स खरीदते हैं या तो वो मेरा सप्लायर होता है, क्रेडिटर्स होता है, किसी के नाम से भी आप खरीद सकते हैं। ओके, बेचते हैं तो डेटर या फिर कस्टमर। जब भी हम किसी को बेचते हैं तो या तो उसको हम डेटर के नाम से डेबिट करते हैं या फिर कस्टमर के नाम से डेबिट करते हैं। सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। सो इन दिस सिचुएशन यू कैन फील दैट कि परचेज डेबिटेड बाई 85,000 बिकॉज वी परचेज 40,000 and 45,000, 2 types of goods, but totality in we purchase 85,000. What goes cash? How much? 40,000. And कितने का पेमेंट नहीं किया है, कितने का क्रेडिट पे खरीदा है? 45,000. तो when we purchase anything on credit, so it represent your liability as a creditor and it will be a credited. Now we will move to the fourth transaction. Fifth transaction, paid a check of 2 lakh to the supplier for plant and machinery. You purchase a plant and machinery
कितने का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है? 2 लाख रुपीज़। पेड अ चेक। अब ये कहोगे सर इसकी जनरेटरी तो बहुत क्लियर है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नो, ये कंफ्यूज करिए, आप इस ट्रांजैक्शन को इसके साथ रिलेट करिए। 2,30,000 का प्लांट एंड मशीनरी आपने थर्ड ट्रांजैक्शन में खरीदा जिसमें 30,000 का पेमेंट कर दिया था, अभी भी कितने का करना था? 2 लाख रुपए का। वही वो बता रहा है कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी का पेमेंट कर दिया है उस सप्लायर को, यानी जो ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड में मैंने उधार पे सामान खरीदा था 2 लाख रुपए का, 2,30,000 रुपये का टोटल प्लांट एंड मशीनरी वी परचेस्ड, बट 30,000 वी पेड इमीडिएटली। द बैलेंस अमाउंट रुपीज़ 2 lakh वी पेड ऑन लेटर। सो द 2 lakh paid by the businessman in the fifth transaction by check. So you know very well, liability will be increased or decreased. Sir, in such situation liability will be decreased. Why? Because of sir liability का हमने पेमेंट कर दिया। कैसे पेमेंट किया? बैंक के थ्रू। तो जो 2 लाख रुपए मेरे ऊपर उधार था प्लांट एंड मशीनरी का, उसको मैंने पे कर दिया। तो हु इज़ अ रिसीवर? सर क्रेडिटर, क्योंकि जब खरीदा था तो क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया था, बिकॉज ही इज़ अ liability for the firm, but when we paid it, so it applies the personal account. You know very well, in the personal account debit the receiver. So who's the receiver? Creditor. So creditor account debit, okay, and what goes? So check. And you know very well, in the last video we clearly gives you the concept about the payment by check. If you pay by your check, so in this situation आपके पास से कोई पैसा नहीं जाता, पैसा कौन देता है? बैंक। तो हु इज़ अ गिवर? बैंक। सो इन दिस सिचुएशन पर्सनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हु इज़ अ रिसीवर? क्रेडिटर। एंड हु इज़ अ गिवर? बैंक, बिकॉज वी पेड अ चेक टू द सप्लायर। सो नाउ वी विल मूव टू द सॉल्यूशन। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज क्रेडिटर इज अ रिसीवर एंड वी पेड बाई चेक। You can easily see the transaction number 3 and transaction number 5. In the transaction number 3, we credit the creditor as a liability, but we paid a check to the to the creditor, so creditor will be debited because the liability will be down, will be decreased. And what goes? Check. And you know very well, if we paid any amount through check, so in this situation, our bank is entitled to pay such amount. So creditors account debit to bank account, and the narration is payment made to the supplier of plant and machinery. Now we will move to the transaction number 6. 70,000 cash sales of goods costing 50,000. You know very well, आपने 70,000 का कैश सेल्स किया, वो गुड्स कितने का था? 50,000 का। ओके, सो यहाँ पे आप थोड़े कंफ्यूज होंगे। इसका मैं सॉल्यूशन दिखा देती हूँ तो आप खुद ही क्लियर हो जाओगे कि सर क्या कहना चाहते हैं। देखिए एकदम क्लियर। यू नो वेरी वेल कि आपने 50,000 रुपये का गुड्स 70,000 रुपये में बेचा है। सर यहाँ पे 20,000 रुपये की प्रॉफिट हुई है, क्या हम प्रॉफिट को राइट डाउन नहीं करेंगे? नहीं, बिकॉज सेल्स में ऑलरेडी का मतलब ही होता है, सेल्स का मतलब ही होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेल्स, सो ये मान लिया जाता है कि हमें उस पर प्रॉफिट इंक्लूड है। सो इस पे आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एकदम क्लियर मैं बता दूं कि जब भी हम कोई गुड्स सेल करते हैं, गुड्स नॉट एन एसेट्स, जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं तो गुड्स सोल्ड के केस में अगर हम प्रॉफिट पे सोल्ड करते हैं तो प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करते, बिकॉज जब हम सेल्स को ऑलरेडी शो करा दें, क्योंकि सेल्स इज़ अ रेवेन्यू, सेल्स इज़ अ रेवेन्यू, सेल्स इज़ अ इनकम। सो इनकम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देखिए सेल्स को, इनकम को क्रेडिट किया है कि नहीं किया? तो यहाँ पे आप अलग से प्रॉफिट शो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड होगी। सो कितने का सेल किया? 70,000 रुपीज़ का। और कितना पैसा आया होगा? 70,000। उस 50,000 को हम कहीं शो नहीं करेंगे इन द जनरल एंट्री। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते तो अलग से शो करते, स्टॉक में से माइनस करते 50,000, कैश में ऐड करते 70,000, और जो 20,000 बचता उसे हम कैपिटल में ऐड करते, जैसा हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन।
बट जब हम जनरल एंट्री पास करते हैं और जब कोई गुड्स सोल्ड करते हैं प्रॉफिट में, तो उसको अलग से शो नहीं कराते, वो सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूड होता है प्रॉफिट। ये कुछ नॉलेज आपको ऐसी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको नॉलेज मिलती रहेगी। ओके, सो वी सोल्ड अ गुड्स ऑफ ₹70,000 और उसकी कॉस्टिंग कितनी थी 50,000। तो कॉस्ट से हमको कोई लेना देना नहीं है। सर ने भी बताया कि जब हम कोई गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स में ऑलरेडी वो प्रॉफिट इंक्लूड होती है, यानी अलग से प्रॉफिट को शो कराने की ज़रूरत नहीं है कि 20,000 प्रॉफिट हुई है। हाँ, नरेशन में अगर आप चाहें तो उस चीज़ को शो करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंपल सा नरेशन है, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7, it is a very easy transaction, you know very well. Withdrawn by the proprietor 35,000 cash for personal use. You know very well, if any proprietor or the owner of the business withdraw any amount or the value of goods from the business for personal use, यानी जब ओनर बिजनेस का अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा या कोई भी गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं सर? ड्राइंग बोलते हैं। सो इस सिचुएशन में उसने कैश विड्रॉ किया है, तो कैश इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा? सर, बिजनेस से कैश डिक्रीज़ हो जाएगा। और ड्राइंग हो रहा है तो ड्राइंग को हम लोग क्या कहते हैं? डेबिट करते हैं। सो इन दिस सिचुएशन द जनरल एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। एंड व्हाट इज द नरेशन? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, दैट इज 35,000 एंड 35,000। Okay, now we will move to the transaction number 8, insurance paid by check. The term is insurance paid. आप थोड़ा सा सोचिए, इंश्योरेंस पे किया, आपके पेरेंट्स आपका इंश्योरेंस कराए होंगे या आप खुद का इंश्योरेंस कराए होंगे, तो उससे उनका प्रीमियम भरना होता है। ये वही टर्म है कि इंश्योरेंस पे किया। सब आप खुद सोचिए, इंश्योरेंस पेड क्या है? पर्सनल अकाउंट का रिलेशन है? नहीं सर। थोड़ा और सोचिए, रियल अकाउंट कोई एसेट से रिलेटेड है? नहीं। नॉमिनल अकाउंट? यस सर। व्हेन वी पेड अ इंश्योरेंस सो इट विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंस। सो यू नो वेरी वेल, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिटेड। So you know very well, insurance paid is expense, so insurance account is debited and by check। आपने खुद नहीं पे किया, यानी कैश जाकर उसको नहीं दिया है, आपने चेक से पेमेंट, चेक काट के देते हैं। तो यू नो वेरी वेल, जब हम चेक देते हैं तो चेक का पेमेंट हम थोड़ी ना करते हैं, वो जाएगा मेरे बैंक अकाउंट से, वो पैसा विड्रॉ कर लेगा। ओके, सो इन दिस सिचुएशन द इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, द अमाउंट विल बी 2,500। बैंक क्यों क्रेडिट हुआ है ये मैंने बार बार आपको बताया हुआ है, बिकॉज व्हेन वी पेड एनी अमाउंट बाय चेक, सो अमाउंट पेड बाय द आवर बैंक, so he is a giver, and you know very well in the personal account debit the receiver and credit the giver, so the bank account is credited and insurance account is debited due to the nominal account. Amount will be written there and the narration is paid insurance by check. Now ये थोड़ा सा important part है, ये थोड़ा सा confusing भी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सोचिए। सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग, सैलरी 5,500 रुपये आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग है आपके ऊपर। सो सैलरी टर्म क्या है? इनकम और एक्सपेंस? सर इट इज़ एक्सपेंस। तो ये तो क्लियर हो गया कि सैलरी आपकी होगी डेबिट, बट सैलरी क्या आपने पे किया है? पैसा गया है? नहीं सर, उसमें तो लिख रहा है आउटस्टैंडिंग है। So outstanding salary, what is the meaning of outstanding? Let me clear first. Outstanding means any amount due but not paid. कोई भी चीज़ आपके ऊपर ड्यू हो जाती है लेकिन अब आप उसको पे नहीं करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ओके, सो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट द लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, एंड यू नो वेरी वेल when the liability of the firm will be increased, so it will be accredited. So in this situation, salary debited as per the nominal account
बिकॉज जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वी डेबिटेड द एक्सपेंस according to the modern rule as well as the traditional rule, and when the liability will be increased, so liability will be credited. So in this situation you know very well कि salary account debit to outstanding salary, it is very clear because salary is a nominal account or the expense. So in case of increase in the expense, so it will be debited, and outstanding salary is a liability for the business, so it will be a credited, because when the liability of the firm will be increased, so it will be credited. The amount is as follows, and salary outstanding write down as the narration. Now we will move to the last transaction of this question, that is purchased furniture of rupees 30,000 purchase in cash. It is very clear, but यहाँ पे एक टर्म आपका कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लिए हुए हैं. Furniture of 30,000 purchase in cash. Yes sir. We purchase a furniture. So furniture is an goods or assets? सोचिए थोड़ा सा. Sir, if you purchased a furniture, so furniture is not a goods, it is an assets. And you know very well, जब हम goods purchase करते हैं तो purchase account को डेबिट करते हैं, लेकिन जब हम कोई assets purchase करते हैं तो particular assets का नाम डेबिट करते हैं. Due to the रियल अकाउंट यू नो वेरी वेल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो जब हम फर्नीचर परचेस करेंगे तो फर्नीचर एसेट्स है, तो गुड्स परचेस डेबिट नहीं करेंगे, फर्नीचर को डेबिट करेंगे, बिकॉज ऑफ फर्नीचर इज अ एसेट्स. अगर ये गुड्स परचेस करते तो लिखते परचेज अकाउंट डेबिट. ओके, सो परचेज के केस में आप थोड़ा सा ये समझिएगा कि गुड्स अगर परचेस करते सो हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट करते, बट अगर हम लोग एसेट्स परचेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम डेबिट करते हैं. जैसे अगर हम लैंड परचेस करते, बिल्डिंग परचेस करते, मोटर कार परचेस करते, तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ एसेट्स. एंड एसेट्स में बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स. तो जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स. गुड्स अगर परचेस करते हैं सो वील डेबिट दी परचेस, एंड इफ़ यू परचेस एनी एसेट्स सो द पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड. एंड इन व्हाट टर्म? इन कैश. सो यू नो वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट यू नो क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो जब आप परचेस कर रहे हो फर्नीचर, घर में फर्नीचर लेकर आ रहे हो या बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद के लेकर आ रहे हैं, तो बिजनेस से कैश जा रहा है. सो जब भी कैश जाता है तो कैश को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो इन दिस ट्रांजेक्शन यू कैन सी इट, द एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. फर्नीचर विल बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट. द अमाउंट विल बी 30,000 and 30,000. Okay, so we solve and as well as we passed all the entries given in this question. उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद आप लोग क्या करना, इस पूरे कॉलम को टोटल कर लेना, इसको पूरा टोटल कर लेना, डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में, और से एज अ टोटल सॉल्यूशन में शो कर देना. यानी आफ्टर द पासिंग द होल एंट्री इन द जर्नल, we will total the debit column as well as credit column at the end of the question and shows as a total. अगर यही पेज बीच में पेज भर जाता तो यू नो वेरी वेल, जिस पेज पे वो फिल होता उसे टोटल कैरी फॉरवर्ड और नेक्स्ट पेज पे लेके जाते तो टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड करके दिखाते, जैसे इस क्वेश्चन में बीच में हुआ भी था. सो बेसिकली आज के इस क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखने की कोशिश की एज पर दी लास्ट वीडियो में हमने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिया था, उसकी जनरेटरी पास की थी, एंड इसके वीडियो में भी हम लोगों ने जनरेटरी पास करना सीखा. सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ टेक द फ्यू ट्रांजेक्शन एंड पास जनरेटरी बाय हिमसेल्फ. खुद से आप ट्राई करिए. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स रिगार्डिंग जनरेटरी, सो प्लीज़ आस्क मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल एज द WhatsApp group. And the most important part is this: you must take care about the both rule of generalizing, the traditional rule of generalizing as well as the modern rule of generalizing. दोनों रूल आपके दिमाग में एकदम बैठा होना चाहिए, और दोनों रूल को कैसे हम ट्रांजेक्शन इवेंट्स की जनरेटरी पास करते समय कैसे उसको फॉलो अप करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्योंकि
कहीं आप ट्रांजेक्शन में देख रहे होगे कि आपको हेल्प कर रहा है मॉडर्न रूल, कभी कभी किसी ट्रांजेक्शन में आपको ट्रेडिशनल रूल भी हेल्प कर रहा है। तो ये आपके कंफर्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस रूल्स को ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं, किसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ा गया है। इसलिए मैंने आपको दोनों टाइप्स ऑफ जनरलाइजिंग के रूल्स आपको इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। सो आई होप कि आपको आज का जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।